Hello everyone. In this video we'll be starting with the fifth chapter of history which is Through the Eyes of Travelers. तो इस चैप्टर का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 10th to the 17th सेंचुरी. तो अभी तक लास्ट 4 चैप्टर्स में हमने जो कुछ भी पढ़ा दैट वाज अप टिल दी 6th सेंचुरी. तो अब 6th सेंचुरी के बाद वाले पीरियड को हम मिडीवियल पीरियड से रेफ़र करते हैं. The period from the 6th to the 13th century is referred to as the early medieval period, and the period from the 13th to the 16th century is referred to as the late medieval period. तो अभी तक हमने जो भी देखा that is the period before 6th century that is referred to as ancient history. 6th to 16th is referred to as medieval history, and इसके बाद वाला जो period है that is referred to as the modern history. So let's briefly take a look of the important events that happened in the early medieval period. The 6th century witnessed the collapse of the Gupta Empire. By the end of 10th century and the beginning of 11th century, Mahmud of Ghazni invaded India. So you people might have heard about his invasion and how he destroyed the famous Somnath temple. Then in the 12th century, precisely 1175, Muhammad of Gaur, that is Muhammad Ghori, invaded India. And then 13th century में Qutbuddin Aibak, who was an official of Muhammad of Gaur, he established the slave dynasty or the Mamluk dynasty, जो कि first dynasty थी of the Delhi Sultanate. तो इस chapter में, as the title of the chapter suggests, we'll talk about travelers, and in particular 3 important travelers जिन्होंने इंडिया के बारे में अकाउंट्स लिखे. The first of these travelers is Al-Biruni, जो कि उज़्बेकिस्तान से थे, and he came in India during the period of 11th century. That is precisely the time when Mahmud of Ghazni invaded India. Then the second important traveler is Ibn Battuta. He was from Morocco, which is a country in Africa, and he came during the 14th century. And lastly, we'll talk about François Bernet, who was from France and travelled in India in the 17th century. तो इस चैप्टर की जो ड्यूरेशन है दैट इज़ फ्रॉम 10th to the 17th century. एंड इफ़ यू लुक क्लोजली तो जो भी हम इवेंट्स डिस्कस करेंगे थ्रू आउट दिस बुक उनकी ड्यूरेशन है फ्रॉम द 8th to the 18th century. तो जो भी हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी मोस्टली अबाउट मिडीवियल इंडिया विद अ ब्रीफ ओवरलैपिंग विद एंशिएंट इंडिया एज वेल. So I hope you guys are able to make a link between what we've earlier discussed and what we are going to discuss in this book. तो अब इन लोगों के accounts बहुत ज़्यादा important हैं, obviously because they provide a lot of information about the Indian subcontinent. One important reason that we study their accounts is also कि इन्होंने उन चीज़ों पे भी focus किया जो Indian texts ने ignore किया. For example, उस टाइम पे जो चीज़ें इंडियंस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी उन्होंने उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली नहीं किया होगा टेक्स्ट में. हाउएवर बिकॉज दीज पीपल केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, इनके अकॉर्डिंग इंडिया के कई ट्रेडिशंस या कई इवेंट्स ऐसे थे विच वर नॉट कॉमन, तो दे वुड हैव डॉक्यूमेंटेड दोज थिंग्स इन देयर अकाउंट्स. देयरफॉर वी गेट अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट्स विच दीज पीपल हैव प्रिपेयर्ड. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अल-बिरूनी एंड द किताबुल हिंद. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट हु वाज अल-बिरूनी. तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे हिज मोस्ट फेमस वर्क विच इज़ किताबुल हिंद, एंड देन वील डिस्कस इन डिटेल अबाउट हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड हिज वर्क्स. तो अब अल-बिरूनी वाज बॉर्न इन अ प्लेस कॉल्ड ख्वारिज़्म विच इज़ अ प्लेस इन उज़्बेकिस्तान. तो ये अब इंटायरली उज़्बेकिस्तान में नहीं है. दिस प्लेस फॉल्स पार्टली इन उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. So Al-Biruni was a well-read person and was a linguist. So he was well-versed in a number of languages including Arabic, Syriac, Persian, Sanskrit, etc. Persian was the language of Persia, which is present-day Iran. Right? So in the 11th century, precisely in the year 1017, Sultan Mahmud Ghazni invaded Khwarizm. तो जब इन्होंने यहाँ इन्वेड किया ही टुक सेवरल पोइट्स एंड स्कॉलर्स टू हिज कैपिटल विच इज़ गज़नी. गज़नी इज़ इन प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान. तो इन्हीं पोइट्स और स्कॉलर्स में एक थे अल-बिरूनी.
तो इनिशियली तो अल बिरूनी को एज अ होस्टेज, दैट इज़ एक कैदी की तरह ले जाया गया. हाउएवर विद टाइम ही डेवलप्ड एन इंटरेस्ट एंड अ लाइकिंग फॉर दैट सिटी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही स्पेंड हिज रेस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर ओनली. तो अब जब अल बिरूनी गज़नी में थे तो ही डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडिया, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच ही रेड अ नंबर ऑफ सांस्कृतिक टेक्स्ट. तो उस टाइम पे सांस्कृतिक टेक्स्ट को या सांस्कृतिक वर्क्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता था, जिसमें से वन ऑफ द लैंग्वेज वॉज अरेबिक. सो अल बिरूनी रेड दीज वर्क्स. देन जैसे गज़नविद एम्पायर बढ़ा तो पंजाब ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ द एम्पायर, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच अल बिरूनी केम इन कॉन्टैक्ट विद द लोकल पॉपुलेशन. तो सांस्कृतिक टेक्स्ट तो उन्होंने पढ़े ही, प्लस ही केम इन कॉन्टैक्ट विद द लोकल पॉपुलेशन, जिसकी वजह से उनकी जो ये अंडरस्टैंडिंग थी ऑफ सांस्कृतिक टेक्स्ट दैट इम्प्रूव्ड. देन अपनी लाइफ के काफ़ी साल उन्होंने ब्राह्मण प्रीस्ट्स एंड स्कॉलर्स के साथ गुजारे, एंड ही रेड अ लॉट ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल वर्क्स. कॉन्सिक्वेंटली ही रोट अ नंबर ऑफ अकाउंट्स, जिसमें से जो सबसे फेमस अकाउंट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज़ किताब उल हिंद, विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1030. तो उस टाइम जो ट्रैवल लिटरेचर का जॉनर था दैट वाज एक्सट्रीमली पॉपुलर. तो यूजुअली जो ट्रैवलर्स होते थे दे यूज़ टू अंडरटेक जर्नीज़ एंड देन वो अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करते थे इन अ नंबर ऑफ अकाउंट्स. तो these usually contain the impressions of their journeys, the description of various events, and their observation about different places and events, etc. So Al-Biruni was also one such person who traveled widely, that is majority of the northern India उन्होंने cover किया था and अपने experiences को उन्होंने document किया. किताब उल हिंद was basically an account of medieval India, जिसमें उन्होंने लिखा about the economic, political, geographical, religious and social conditions of India. So now let's discuss about Kitab ul Hind. So the title of the book was Kitab ul Hind. अब हिंद का मतलब ये नहीं है दैट दिस बुक पर्टिकुलरली परटेन्स टू द हिंदू रिलीजन, बट हिंद जो टर्म यूज़ की जाती थी दैट वाज टू रेफ़र टू द रीजन विच वाज ईस्ट ऑफ द रिवर सिंधु, दैट इज़ द इंडस रिवर. तो इनिशियली जो टर्म हिंदू थी दैट वाज नॉट यूज्ड फॉर द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन दैट इज़ हिंदुइज्म, बट द टर्म रेफर टू द पीपल बिलोंगिंग टू द रीजन दैट वाज टू द ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर. So we can say that Kitab ul Hind contained observations on the Indian civilization. Kitab ul Hind was a voluminous work. It had 80 chapters on different subjects like religion, customs, social life, laws, etc. Then originally Kitab ul Hind was written in the Arabic language, so it was written in a simple and a lucid manner ताकि वो easily understandable हो. अब there were multiple reasons why Arabic was the chosen language. This was because ये language काफ़ी ज़्यादा widely spoken थी, तो ताकि ये जो work है this could cater to larger audiences, that's why the work was written in Arabic. Further, जो गज़नविद एम्पायर था उसकी one of the main languages, particularly in terms of theology, was Arabic. Next, the structure which was used by Al-Biruni was almost a geometric structure. तो वो स्टार्ट करता था विद अ क्वेश्चन, देन उसको एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए ही यूज़ टू टेक हेल्प ऑफ सांस्कृतिक ट्रेडिशंस, एंड अल्टीमेटली ही यूज़ टू प्रोवाइड अ कंपैरिजन बिटवीन द कल्चर प्रेवलेंट इन इंडिया एंड अदर कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड. Then as I've already told that there were multiplicity of subjects which were covered in Kitab ul Hind. It was a penetrating study of human relations and cultural complexities, and there was huge emphasis on defining the caste system. अब next we come on to the limitations which were faced by Al-Biruni. तो यहाँ से जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ टॉपिक 4 ऑफ द चैप्टर इन द बुक, बट मैं ये कॉन्टिन्यूटी में ही मेंशन कर रही हूँ बिकॉज दिस वे इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक. सो ही फेस्ड अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस जो उसने खुद भी रियलाइज़ करी. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट लिमिटेशन वॉज दैट ऑफ लैंग्वेज. देन द सेकेंड बैरियर विच ही एनकाउंटर्ड वॉज डिफरेंस इन द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. सो दिस इज़ प्रिटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. So he obviously did not have the first-hand experience of the religious beliefs and practices of the Indian people. And the third limitation which he faced was the self-absorption and insularity of the locals. That is, जो local population थी that was not really interested in the cultures or tradition of other countries
or other places. So, according to Al-Biruni, this kind of acted as the third barrier in his understanding and the study of Indian society. However, one thing which is extremely interesting is that in spite of all these barriers, he relied heavily on the works of Brahmins like Ved, Puran, Manusmriti, Dharmshastras, etc. Now let's discuss his description of the caste system in India. तो हमने डिस्कस किया था दैट जो स्ट्रक्चर था अल-बिरूनी की राइटिंग्स का, उसमें एंड में ही यूज्ड टू प्रोवाइड अ कंपैरिजन ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड societies around the world. So one important method which he used was the method of comparison. Indian caste system को उन्होंने compare किया with the social categories of ancient Persia. Persia is present day Iran. तो एंशियंट पर्शियन सोसाइटी में देयर वर 4 डिफरेंट सोशल कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी में आते थे नाइट्स एंड प्रिंसेस. सेकेंड कैटेगरी में थे मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट, लॉयर्स. Third category consisted of physicians, astronomers and other scientists, and the fourth category comprised of peasants and artisans. On the other hand, Indian caste system mein we had the Brahmins at the top, the Kshatriyas, the Vaishyas and then the Shudras. तो अबाउट दीज वीव टॉक्ड इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 3, जहाँ हमने बात करी थी कि हाउ ऑल दीज कैटेगरीज हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम पुरुष सूक्त, दैट इज़ द आइडिया ऑफ अ प्राइमेरियल मैन. तो यू कैन रेफर टू दैट चैप्टर फॉर दिस. तो अब इस कंपैरिजन से अल-बिरूनी ने ये दिखाना चाहा दैट सोशल डिविजन्स आर नॉट यूनिक टू इंडिया, दैट सोशल डिविजन्स एग्जिस्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज़ दैट अल-बिरूनी ने ये दिखाया दैट सोशल डिविजन्स आर नॉट यूनिक टू इंडिया एंड देयर आर सोशल डिविजन्स इन एंशियंट पर्शिया एज वेल. हाउएवर दूसरी ही जगह उन्होंने ये मेंशन किया दैट इन इस्लाम ऑल मैन आर कंसिडर्ड इक्वल एंड उनमें डिफ्रेंसिएशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवोशन टू गॉड. राइट, तो एक जगह पे उन्होंने दिखाया दैट मैन आर इक्वल, हाउएवर ऑन द अदर हैंड ही सेड कि देर आर सोशल डिविजन्स. सो दिस वाज काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड आई एम मेंशनिंग इस्लाम बिकॉज जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ द 10th और द 11th सेंचुरी, उस टाइम पे एंशियंट पर्शिया में द डोमिनेंट रिलीजन वाज इस्लाम. उससे पहले द रिलीजन विच वॉज फॉलोड देयर वाज ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म. राइट, सो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन. देन कास्ट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में ही वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पोल्यूशन. तो हमने बात करी थी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट ऑल दीज कास्ट दैट सम कास्ट आर कंसिडर्ड टू बी आउटसाइड द सोशल ऑर्डर और आउटसाइड द सोशल हायरार्की एंड आर कंसिडर्ड टू बी अनटचेबल्स. सो ही वॉज अगेंस्ट दिस आइडिया. अल-बिरूनी के अकॉर्डिंग दिस आइडिया ऑफ पोल्यूशन वॉज अगेंस्ट और कॉन्ट्ररी टू द लॉज ऑफ नेचर. लास्टली जो अल-बिरूनी की डिस्क्रिप्शन है ऑफ द कास्ट सिस्टम दैट इज़ एक्सट्रीमली रिजिड, वो इसलिए बिकॉज ही प्लेस्ड हैवी रिलायंस ऑन द नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट. नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट का मतलब वो टेक्स्ट जो ले डाउन करते हैं नॉर्म्स विच गवर्न ह्यूमन बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल द धर्मशास्त्रस. तो बिकॉज वो हेविली उन टेक्स्ट पे रिलाई करते थे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी सोसाइटी, इसीलिए उनकी जो कास्ट सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ रिजिड बिकॉज इन टेक्स्ट में तो सिर्फ ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू है. हाउएवर इन रियलिटी द कास्ट सिस्टम वॉज फ्लेक्सिबल बिकॉज इन रियलिटी ये देखा गया है दैट कई कास्ट जिन्हें आउटसाइडर कंसिडर किया जाता था, फॉर एग्ज़ाम्पल अंत्यजा, they were often included in the economic networks. For example, उनको as laborers रखा जाता था, as peasants रखा जाता था by other people. तो ऐसा नहीं था कि there was total exclusion of these people. So this is one limitation of his account. Now let's talk about another famous traveler which was Ibn Battuta. Ibn Battuta was a Moroccan traveler. He was born in Tangier, which is a place in Morocco. And Morocco is a country in the African continent. तो इब्न बतूता ने जब ट्रैवल किया दैट वाज इन दी 14th सेंचुरी, whereas अल-बिरूनी का जो टाइम पीरियड था दैट वाज द 11th सेंचुरी. तो इब्न बतूता जस्ट लाइक अल-बिरूनी वाज अ वेल रेड पर्सन एंड ही हैड एक्सपर्टीज़ इन द इस्लामिक शरीयत लॉ. तो शरिया इज़ द इस्लामिक लॉ विच इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड द ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. So Ibn Battuta travelled extensively. The countries he visited include Syria, Iraq, Persia, Yemen, Oman, India, China, etc.
इब्न बतूता रीच्ड सिंध इन द 14th century और उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द रूलर. ही वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम. ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत. तो अब मोहम्मद बिन तुगलक was impressed by Ibn Battuta and appointed him as a qazi, which is a term for judge. तो Ibn Battuta was appointed as the judge of Delhi by Muhammad bin Tughlaq. अब for a brief period of time, because of some misunderstanding, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को प्रिजन में डाल दिया था. However, जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, he was again reinstated as an official of the Sultan. और 1342 में the Sultan sent him as an envoy, which means a diplomat, to Mongol ruler in China. So this is about the introduction of Ibn Battuta. अब इब्न बतूता के अकाउंट्स को मार्को पोलो के साथ भी कंपेयर किया जाता है. मार्को पोलो वॉज अ फेमस इटालियन ट्रैवलर. वो बेसिकली वेनिस के एक मर्चेंट थे. वेनिस इज़ अ प्लेस इन इटली एंड ही ट्रैवल्ड थ्रू एशिया. Precisely speaking, he travelled along what later came to be known as the Silk Road. तो मार्को पोलो की जो जर्नी का टाइम था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 1270 to 1295 एंड इन्होंने भी बहुत एक्सटेंसिवली लिखा अबाउट दी जर्नीज़ विच वर अंडरटेकन बाय हिम एंड इनके अकाउंट्स भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं. सो इब्न बतूता के अकाउंट्स को इनके साथ कंपेयर किया जाता है. अब वन थिंग इम्पॉर्टेंट इज़ दैट जिस टाइम पे ये लोग ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पे ट्रैवल वॉजंट कंसिडर्ड एन ईजी थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट वाज एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग. सेकेंडली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज यूजुअली ट्रैवलर्स पे अटैक हो जाते थे, फॉर एग्जाम्पल बाय हाईवे रॉबर्स एट्सेट्रा. अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंट बाय इब्न बतूता इज़ कॉल्ड द रिहला. दिस वॉज रिटन इन अरेबिक and this talked about the social and cultural life of the subcontinent in the 14th century. So now let's see what he wrote about. So the topic which we have is Ibn Battuta and the excitement of the unfamiliar. तो unfamiliar इसलिए as I've already told कि Indian subcontinent में जो situations थी they were very different from those existing at other parts of the world, especially from where these people come. तो जो चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए इतनी स्पेशल नहीं थी या ऑर्डिनरी लाइफ का पार्ट थी वो इन लोगों के लिए यूनिक थी और स्पेशल थी. तो जिस टाइम पे इब्न बतूता आया दैट इज़ इन दी 14th century, उस टाइम पे देयर वर टू मेजर डेवलपमेंट्स. First is there was a global network of communication and second there was a development of the culture of urban centers, that is urbanization. With respect to the network of communications, Ibn Battuta wrote that the state undertook measures to encourage merchants. इसका एविडेंस मिलता है हमें फ्रॉम थिंग्स लाइक ट्रेड रूट्स पे देयर वर इन्स, देयर वर फैसिलिटीज़ ऑफ गेस्ट हाउसेस एट्सेट्रा, सो दैट जो मर्चेंट्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, उनको ईजी हो ट्रैवल करना. फर्दर देयर वाज अ हाईली डेवलप्ड पोस्टल सिस्टम जिससे क्रेडिट रेमिट करना, दैट इज़ मनी सेंड करना एंड गुड्स डिस्पैच करना वाज एन एक्सट्रीमली ईजी टास्क. So although I've stated that travel at that time was not an easy task, but because of certain developments which were not there at earlier times, for example at times when Al-Biruni travelled, there were significant improvements when compared with the older times. Then with respect to the urban centers, he wrote that the cities offered exciting opportunities for people, and जो cities थी they were densely populated but were prosperous. देन जो ट्रेड एंड कॉमर्स था उस टाइम पे दैट वाज हाईली डेवलप्ड एंड इस रिलेशन में ही मैंशंस अबाउट द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे उनकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड वाज वेरी वेरी हाई. सो दीज वर द फैक्टर्स जिसकी वजह से जो टाउन्स थे दे वर एक्सट्रीमली वेल्दी. देन ऑल्दो ये जो टाउन्स थे दे वर प्रॉस्परस, देयर वर ओकेजनल डिसरप्शंस एज वेल बिकॉज ऑफ वॉर्स एंड बिकॉज ऑफ इन्वेजन्स. Also mentions that the streets and the markets were extremely crowded and they were not only a hub of economic activities but they were a hub of cultural and social activities as well. And one last thing which he also noted was that the agriculture in India was extremely productive, so much so that the farmers were able to grow almost 2 crops in a single year. So this is all with respect to this particular topic. In the next video, I'll be starting with the topic of Francois Bernet. Thank you so much for watching.